ریاست کے علاوہ کسی بھی گروہ کو طاقت استعمال کرنا قابل قبول نہیں۔ پاکستان بغیر کسی مذہبی یا لسانی امتیاز تمام پاکستانیوں کا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ جی ایچ کیو میں تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام اور مشائخ کی ملاقات۔ آرمی چیف کے علماء مشائخ سے پروپیگنڈے کے تدارک اور اندرونی اختلافات دور کرنے پر زور۔ علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کے مذہب کے مسخ شدہ تشریحات ان کی ذاتی مفادات کے لیے ہیں۔ ایسے عناصر کو اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ آرمی چیف نے دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ فورن کی افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پاکستان کے مواقف کی مکمل حمایت۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات کی بھی حمایت۔ نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھی انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ نون لیگ مہنگائی لیگ، بلاول کے طنزیہ وار مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے اب الیکٹیبلز نہیں رہے۔ عوام اب سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ سلیکشن ہوئی تو ملک کو مزید نقصان پہنچے گا۔ بلاول بھٹو نے مردان ورکرز کنونشن میں تنقیدی تیر چلا دیے۔ کہا پاکستان کی سب سے بڑی دشمن پرانی سیاست ہے۔ پرانے سیاستدانوں کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ پرانے سیاستدان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ نہ آج کی سوچتے ہیں اور نہ کل کی۔ ہم نئی سیاست کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں گے۔ سب کو نظر آ رہا ہے آئندہ انتخابات پیپلز پارٹی جیتے گی۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، مہنگائی سے ہے۔ نون لیگ کی جیت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی سابق ایم این اے سے گفتگو۔ کہا مہنگائی کو دہشت گردی اور بدامنی کی طرح ختم کریں گے۔ الیکشن میں نون لیگ کی جیت عوام کی جیت ہوگی۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیٹ لینے کے لیے نون لیگ مخالف بیانیہ چلانا ہوگا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج۔ وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کی سپریم کورٹ میں انٹرکول اپیل دائر۔ موقف اپنایا۔ فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستیں سننے والے بینچ کی تشکیل درست نہیں تھی۔ آرمی ایکٹ عدلیہ کے آئینی اختیار سے باہر ہے۔ فوجی عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ مارشل سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ فوجی ٹرائل میں فوجداری اور سول قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ وزارت دفاع نے موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے کالعدم دیے گئے سیکشن بحال کیے جائیں۔ یہ سیکشن کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اپیلوں کے حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا۔ سینٹ میں فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پر احتجاج۔ اجلاس شروع ہوتے ہی ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے قرارداد کی منظوری پر نقطۂ اعتراض اٹھایا۔ چیئرمین سینٹ نے بات کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ سینٹ اراکین کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج۔ سینیٹر ساتھیہ عباسی بولی قرارداد پر بات نہ ہونے تک ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ ملک کی تباہی کی ذمہ دار صرف چیئرمین پی ٹی آئی نہیں، مسلط کرنے والے بھی ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ کہا پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنانا کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر کرنا چاہتی ہے مگر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو لڑانا چاہتی ہیں؟ اس کے پیچھے کشمیر کی تقسیم اور اسرائیل کو قبول کرنے کا منصوبہ تیار تھا۔ کے پی میں آئندہ جے یو آئی اکثریت حاصل کرے گی۔ آج کے جلسے نے ثابت کر دیا اگلی حکومت ہماری ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تفتیش جیل میں جاری رکھنے کا حکم احتساب عدالت نے قرار دیا۔ ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر نیب کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ نیب چیئرمین پی ٹی آئی سے مزید 4 دن جیل میں تفتیش کر سکتی ہے۔ آئندہ تاریخ تک تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ ادھر سائفر کیس کی سماعت بغیر کارروائی 21 نومبر تک ملتوی۔ پروسیکیوشن نے کوئی گواہ پیش نہ کیا۔
स्मॉग आफत करार, PDMA का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत 10 स्मॉग ज़दा अजला में आज लॉकडाउन। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। नकलो हरकत महदूद रहेगी। बाजार, दुकानें, सिनेमा घर और दफातर बंद रहेंगे। मुतासरा अजला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इक़दामात लाजमी करार। उधर पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। सूबाई वज़ीर माहौलियात की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। काउंसिल जनरल ने कहा स्मोक के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार है। लाहौर वाले 5 माह बाद साइकिलों पर नजर आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। स्मॉग के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, साइकिलिंग को फरोग दें। बरतानिया में जजेस आज भी साइकिल पर आते हैं। स्मॉग में फैक्ट्रियों को जितना किरदार मुतालिका अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में महाज खोल दिया। सेहूनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियां जनीन कैंप में दाखिल। काबिज फौज ने 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हिलाल अहमर के हमले समेत 50 से जायद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। मगरबी किनारे की इसराइली चौकी पर 3 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। सेहूनी फौज की इब्न सीना अस्पताल खाली करने की वार्निंग। अस्पताल का घेराव करके एम्बुलेंसेस की नकलो हरकत रोक दी। इसराइली फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर 2 रोज में 24 मरीज जाँ बहक। इसराइल की गजा में बर्बरियत न रुकी। जबालिया कैंप पर फिर बॉम्ब बरसा दिए। 18 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से मजमूई तौर पर 11,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। उधर हमास के इसराइली फौज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने 5 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, टैंक भी उड़ा दिए। मगरबी किनारे के इसराइली चौकी पर हमला, 1 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप के करीब भी झड़पें जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते। इसराइली सफाकियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन का इलामती तौर पर फलस्तीनी शहदा के 2000 जूते रखकर एहतजाज। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन कफन पहनकर पुल पर लेट गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उर्दन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। रूस का फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और नीदरलैंड में भी रैलियां निकाली गईं। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स का अमरीकी हुकाम को सेहूनी हिमायत छोड़ने का मशवरा। मस्जिदुल हराम में नमाज जुम्मा के बाद फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले चढ़ते फिरते कातिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस अलीसिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आए, ब्यूरोक्रेट हो या कोई और, बिला तफरी कार्रवाई की जाए। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। ये जुर्म ज्यादातर पोश इलाकों में हो रहा है। रोड पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लोगों का लाइसेंस बना होगा। उसमें महकमा एक्साइज को भी नोटिस किया जाना चाहिए। उधर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 4 रोज में 1632 मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थाने में बंद। सीटीओ लाहौर कहते हैं अब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज होगी। DIG शाहरुख जमाल की पुलिसराज मौत की तहकीकात में पेशरफ। शाहरुख जमाल के साथ तैनात पुलिस कांस्टेबल सगीर अहमद गिरफ्तार। कांस्टेबल सगीर अहमद DIG शाहरुख जमाल का सरकारी ड्राइवर था।
सराय मुगल में 17 साला लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्ज़िमान ने घर में घुसकर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की। पुलिस ने चारों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तोरखम के रास्ते करोड़ों के जवाहरात की स्मगलिंग नाकाम। अफगानिस्तान से आने वाली कार्गो गाड़ी से 40.5 करोड़ के जवाहरात बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक कीमती जवाहरात कोयले की कार्गो गाड़ी में छुपाए गए थे। जवाहरात और कार्गो गाड़ी जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। मोहम्मद हफीज पर किस्मत की देवी मेहरबान। टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच और बैटिंग कोच के ओहदे देने का फैसला। उधर वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। कहते हैं मेरिट पर सिलेक्शन अव्वलीन तरजीह है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज और शान मसूद की मुशावरत। 25 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। तरबियती कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए हतमी जंग इतवार को होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दिन 1:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगे। कैंगरूज छठी बार एहसास जीतने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 40 लाख अमेरिकी डॉलर्स ले जाएगी। सिक्का उछाला और दूर फेंक दिया। भारतीय कप्तान के टॉस के अंदाज पर सोशल मीडिया पर नई बहस। क्रिकेट माहिरीन कहते हैं रोहित शर्मा सिक्का दूर फेंकते हैं कि कोई उसे देख ही ना सके और मैच रेफरी पहले से तयशुदा फैसले का ऐलान कर दे। सिक्के का रुख कैमरे के क्लोजअप में भी नहीं दिखाया जाता। महंगाई का तूफान बेकाबू। महंगाई में 9.95% रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 41.9% की तारीखी सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। गैस, LPG, ब्रायलर, लहसुन, आटा, आलू, चाय पत्ती, दाल, मसूर समेत दीगर अशिया के निर्ख बढ़ाए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक काबिल एतमाद बिजली की फराहमी जामे और पायदार इक्तसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। सिंध में पीपल्स पार्टी और MKM में नोक-झोंक। सईद गनी कहते हैं MKM की इनिंग्स तो बहुत पहले खत्म हो गई। मुत्तहिदा वाले नून लीग और दूसरी जमातों की मिन्नतें कर रहे हैं। MKM का भी जवाबी वार। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं ये भूल गए बिलावल इसी बुरता घोड़े पर सवार होकर वज़ीर ख़ारजा बने थे। सियासी जमातें हुकूमत में आकर MKM से किए मुआहदे भूल जाती हैं। खांसी के 5 सिरप मुज़रे सेहत करार। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है WHO की तहकीकात में सिरप्स के अंदर अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार की तस्दीक हुई। सिंध और KP में MD कैट के दोबारा टेस्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। भारत के लिए एक और आलमी सुबकी। मालदीव के नौमुंतखब सदर का मुल्क से भारतीय फौज निकालने का ऐलान। तकरीबी हल्फबरदारी से खिताब करते हुए कहा भारतीय फौजियों को मुल्क से निकाल देंगे। और मुमताज फिल्म डायरेक्टर परवेज मलिक को मदाहों से बिछड़े 15 वर्ष बीत गए। परवेज मलिक ने 25 से ज़ायद फिल्में बनाई।
پرائڈ آف پرفارمنس اور نگار ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا.